Hello everyone, welcome to the another session on video solutions of Starters 160 CodeChef. We are a bit late for posting the solutions, but I gave this contest but was unable to record the video solutions because of the upcoming ICPC prelims round. But now it is over, so uh, anyways, let's start the first question. The first question is movie snacks. Okay. The question says that chef is watching a movie and during the intermission wants to get himself some snacks. A bucket of popcorn costs X rupees and a drink costs Y rupees, and there is a combo offer available which provides one bucket of popcorn and one drink at a cost of Z rupees, right? And chef wants to buy two buckets of popcorn and three drinks. So what would be the minimum amount he needs to pay? Okay. So the question says that uh, a bucket of popcorn costs X rupees and basically a cold drink, a glass of cold drink costs Y rupees, right? And there is another offer. In that offer, you can get both of them at rupees Y. Okay. Now, chef wants to buy two buckets of popcorn and three glasses of cold drink. Okay. So what can chef do? Like either he can buy individually two buckets of popcorn and three cold drinks. So total amount he needs to spend is like 2 times X plus 3 times Y, right? And if he uses this offer, then what will be the amount he needs to spend? Like he can get, if he spends, sorry, this is Z, I guess. This is Z, I guess. Uh, yes, this is Z, right? There is an offer. Yes, okay. So this cost is Z. So if chef buys two buckets, basically uh, two combos. If two combos are purchased, what is he getting? He's getting two buckets of popcorn, which is fulfilled, and two cold glasses of cold drink. Now the amount spent here is 2Z, right? Plus you need to buy one more glass of cold drink, right? So it will be 2Z plus Y. So what will be our answer? The minimum of both these costs, right? So you can just simply take minimum of either of these. So like this is the implementation. Like what you can do is you can so you can take the inputs x, y, and z, and you can simply print minimum of 2x plus 3y and 2z plus y as explained, right? That is all for this question. Let's see another question. The next question is too many oranges. The question says that chef has n oranges with him, and each orange has either 10, 11, or 12 slices, right? Now, chef wanted to eat exactly k slices of orange. However, the oranges were too tasty, and chef ended up eating all of them, right? And chef wasn't paying attention, so he didn't count the number of slices he ate, and he also doesn't know how many slices each orange had. The thing only he knows is that each orange has either 10, 11, or 12 slices. Is that possible that chef ate exactly k slices from n oranges? Okay, so this question is also pretty simple. Chef wants to eat. Okay, let's discuss it here. The question says that chef wants to eat k slices, right? And there are n oranges, and each orange can either contain. Each orange has either 10, 11, or 12 slices, right? Either orange is going to have 10 slices or 11 slices or 12 slices. Now, if I talk about total number of slices, so what would be the minimum number of slices?
minimum number of total slices. That will be 10 into n, right? And max number of total slices will be 12 into n, right? So if the slices which chef wants to eat is k, right? So you can safely say that if your k is less than 10n and your k is greater than 12n, so the desired goal can't be achieved, right? In this scenario, desired goal can't be achieved, so you simply print a no. Else you can print a yes in this case, right? Because if your k is in the range 10n to 12n, then you can always figure out a scenario where these k slices can be eaten, right? Okay. So basically, you are given what? You're given n and k, and you have to print a yes or no, right? That is all for this question. Like, there is the implementation. What you can do is, for each test case, you can take n and k as input, and if k is in the range, like I have discussed here, like k is in the range greater than equals to, like is greater than equals to 10n and less than equals to 12n. Okay, then you can simply print a yes, else you can print a no. Okay, so that was all for this question. Let's see the next question. The next question is equate s and t. So you are given two strings s and t of length n and m respectively. Both of the strings only contain characters a and b. You can do the following operation on either s or t as many times as you want. Find an occurrence of a character a in the chosen string and then replace it with ab, right? And check if s and t can be made equal. Output y if it is possible, otherwise, sorry, output yes if it is possible, otherwise no. Okay, right. So in this question, you are given two strings like s and t. These two strings are made up of only characters a and b, right? And the length of s is n and the length of t is m. Okay. Now the thing is, you can operate on either of the strings, and you have to tell whether you can make s and t equal or not. And what is the operation? Like suppose s is this and t is this. Okay. Like suppose s is a b b and t is only a b. Okay. Now to make them equal, what is the operation you can do? Like suppose I operate on t, right? You can select any occurrence of a. Okay. In t, any occurrence of a. Suppose I select this occurrence of a, and you can replace this character with a string ab. Okay. So what t becomes now? New t would be t new would be ab and this old b, right? This will be your t new. Now s and t became equal, so you can print a yes if you can make equate s and t, else you have to print a no, right? So this is the question. Now, one very important observation here is that you can't generate a, right? What I'm trying to say is, if there is a string s and you are operating on that this string, then you need to have some occurrences of a, right? If there is no occurrence of a in s, then you can't operate on s, right? Because what is the operation? You can change a to ab. So what does this operation introducing? This operation is introducing another character b, because a was present already, right? But there is no way that you can create an a, right? मतलब कि a को बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर अगर हम ये कहते हैं कि s और t में, like if I say the count of a, like s of a, ठीक है? This basically symbolizes count of a in s is not equal to count of a in t. Okay. So s of a is not equals to t of a. That means that
count of A is not count of A in S, count of A in T. They both are unequal. बेसिकली दोनों स्ट्रिंग्स में अगर सेम नंबर ऑफ एज नहीं है, सो मैं कभी भी इनको इक्वल नहीं बना सकता, राइट? देर इज नो वे दैट यू कैन मेक बोथ द स्ट्रिंग्स इक्वल. So they can't be make equal. So I can simply safely say that they cannot they can't be make equal. So never equal. Now this simply means that if A in S and A in T are unequal, then you can safely say no. Why? Because there is no way to create an A, right? There is no such operation that is going to create another A. So the A's in both the strings are unequal, and you can safely say that they can't be made equal. Now बात आती है कि तुम बी पे कैसे डील करोगे, राइट? सो फॉर बी द थिंग इज कि तुम ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था ए बी बी एंड ए बी, राइट? तो अगर 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 ए दोनों स्ट्रिंग्स में ये जो फर्स्ट ए है अगर ये सेम इंडेक्स पे है, ठीक है, इसके बाद सम नंबर ऑफ बीज होंगे, फिर कुछ ए हो सकता है, फिर कुछ नंबर ऑफ बीज हो सकता है, तो दीज नंबर ऑफ बीज कैन बी पॉसिबली जीरो, राइट? और सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो होगा, हो सकता है यहाँ पे अभी ए आ जाए, फिर कुछ बीज होंगे, फिर कुछ ए आ जाए, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग होगी. मान लेते हैं ये एस है और ये टी है, ठीक है. अब तुम इसमें ये देखने की कोशिश करो कि अगर पहले इंडेक्स पे ए ना होता, है ना, मतलब कि ये दोनों ए सेम इंडेक्स पे नहीं होते हैं, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर स्टार्टिंग में जो ए है अगर वो सेम इंडेक्स पे नहीं आता है, मान लो कि स्ट्रिंग में ए था ही नहीं, ठीक है, अब क्या होता कि अगर एस शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से कि दो बीज हैं, ठीक है, और फिर कुछ कुछ है, तो टी कुछ इस तरीके से है कि देर इज वन अकरेंस ऑफ बी ओनली एंड देन एन ए एंड समथिंग एल्स, ओके. इस केस में तुम इन दोनों को कभी इक्वल नहीं बना पाओगे. क्यों नहीं बना पाओगे? बिकॉज यू वॉन्ट अनदर बी हेयर, बिकॉज यू वॉन्ट टू शिफ्ट दिस थिंग समहाउ, राइट? ए बी इंसर्ट करने पे होता क्या है, अगर तुम ए से ए बी इंसर्ट कर रहे हो तो ये जो स्ट्रिंग थी ये थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी ना राइट साइड, बिकॉज ए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहा, एक बी इंट्रोड्यूस हो गया, है ना. बट देर इज नो वे, अगर मान लो इस ए को रिप्लेस करके तुम ए बी लिख भी देते हो तो बी जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आएगा, राइट? वन बेस्ड इंडेक्सिंग में अगर ये वन टू एंड थर्ड इंडेक्स है तो बी थर्ड इंडेक्स पे आएगा, राइट? देर इज नो वे दैट यू कैन गेट B on second index because you can't shift this here and introduce a B here without an A before, right? This means that कि S और T में, है ना, अगर सबसे पहले तो तुमको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एज इक्वल है कि नहीं. तो अगर नंबर ऑफ एज इक्वल है तब तुमको ये चेक करना है कि S और T में जो फर्स्ट ए है ना, जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए, दैट शुड बी ऑन सेम इंडेक्स, राइट? अगर वो सेम इंडेक्स पे है तो फिर तुम सबको एडजस्ट कर सकते हो. लाइक मान लेते हैं कि let's take an example. Suppose S is something like B, A, B, B, A, A, and B. Okay. And T is something like there are three A's, right? ठीक है. तो T is B and A. तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सेम रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ और रख सकते हो. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ही बी था, फिर दो एज थे, बस इतना सही स्ट्रिंग था, ठीक है. तो अब तुम क्या कर सकते हो कि इन दोनों को इक्वल बना सकते हो. जैसे, तो इतना प्रीफिक्स तो सेम है, राइट? दिस प्रीफिक्स इज सेम. नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बी है एंड यहाँ पे दो बी है. तुम क्या करो कि इस ए को एक ऑपरेशन करो और इसको चेंज कर दो बी ए बी, बी ए में, ठीक है. नाउ इतना प्रीफिक्स सेम हो गया टिल इंडेक्स दिस, राइट? नाउ यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे एक बी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले ए को सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको चेंज कर दो किसमें, बी ए बी बी ए बी में, राइट?
सो एस एंड टी बिकेम इक्वल। जरूरी नहीं कि टी में लेंथ कम हो तभी ऐसा होगा, बट अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो भी तुम एस और टी दोनों पे ऑपरेट करके कर सकते हो दोनों की इक्वल। लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे दोनों की लेंथ बराबर है। मान लेते हैं अगर ये ऐसा होता, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए हमको सेम रखना है बस। मान लेते हैं दोनों पे ए है एंड यहाँ पे ट्रिपल बी है। यहाँ पे एक बी एक ए है, फिर यहाँ पे एक ए है एंड इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, राइट। इसकी लेंथ, ठीक है। मान लेते हैं ये 5 लेंथ की दो स्ट्रिंग्स है। अब इन दोनों को इक्वल बनाना है तो पहले देखो कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए बराबर है, हाँ है, ठीक है। अब तुम देखो कि कितना प्रीफिक्स सेम है, ए बी, ए बी, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे एक बी आ रहा है और यहाँ पे एक ए आ रहा है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ए एंड ए, ए एंड ए, राइट। हाँ, अगर तुमको यहाँ पे दो बी चाहिए ए के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम ऑब्वियसली इस वाले ए पे तो ऑपरेट नहीं कर सकते हो, इस वाले ए पे ऑपरेट करोगे तो बी राइट साइड में पड़ेगा। अगर तुमको बी इसके लेफ्ट में चाहिए तो इससे पहले वाले ए पे ऑपरेट करना होगा, मतलब कि इस पे ऑपरेट करोगे इस वाले ए पे तो क्या मिलेगा तुमको, ए बी बी, ए बी बी, ठीक है। अब तुमने कितना सॉर्ट कर लिया, ए बी बी तुमको मिल गया, राइट। अब उसके बाद एक और बी चाहिए तो एक बार और ऑपरेट करो, तीन बी है ना, इसमें एस में ए के बाद तीन बी है। एक बार और ऑपरेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ए ट्रिपल बी, ए बी बी, ठीक है। अब कितना सेम हो गया, ए ट्रिपल बी ए सेम हो गया, ए ट्रिपल बी ए सेम हो गया, उसके बाद दो बी चाहिए। तो तुम इस पे ऑपरेट करने लग जाओ। तो एस में एक बार लास्ट वाले ए पे ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए ट्रिपल बी, ए बी। फिर एक बार ऑपरेट करो तो क्या मिलेगा, ए ट्रिपल बी, ए बी बी। सिंपल, एस और टी इक्वल बना सकते हो। तो बस बात इतनी सी है, एस और टी को इक्वल बनाने के लिए नंबर ऑफ एज सबसे पहले बराबर होने चाहिए इन एस एंड टी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एज बराबर होने के बाद फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए जो है, फर्स्ट अकरेंस भी सेम होना चाहिए, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए, ठीक है। ओनली दीज टू थिंग्स वी हैव टू चेक and then we can figure out. Let's see how it goes in the code. So for the code part, this is the code. So for each test case, I have taken n and m as input, then string s and t as input. So this is the input part, and then I have taken four variables. Okay, a, s, a, t, b, s, and b, t. What are these four variables? a, s, a, t, b, s, and b, t. Okay. AS is count of A in S, AT is count of A in T, BS is count of B in S, and BT is count of B in T, right? Now, so AS equals to count in all S. This is basically a template which says that S dot begin comma S dot end, and this is also a macro. Like all is a macro basically. So all this thing symbolizes S dot begin comma S dot end. Okay. So count all S A. So this simply gives me AS gives me count of all A's in S, and AT gives me count of all A's in T. You can run instead of for loop also, that is up to you. Then I'm checking that if AS is not equal to AT, that means the count of A in S and count of A in T are unequal. Then you can simply print a no and you can return from here, right? Else, what you can do? Else I'm thinking that if BS equals to BT equals to 0, that means that अगर दोनों में आई एम इनिशियलाइजिंग BS, राइट, BS एंड BT को दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, देन आई एम चेकिंग दैट if basically I'm counting BS and BT, right? If the first character is B, then you can increment your BS, else you can break. This is basically counting that कि S में फर्स्ट अकरेंस ऑफ A से पहले कितने B's हैं, ठीक है। BS is counting this and BT is counting. This is just way of implementing कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ A दोनों में सेम है कि नहीं। तो एस में जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए होगा उससे पहले कितने बी आ रहे हैं, दैट इज बी एस, ठीक है। सिमिलरली टी में जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए होगा उसमें
ए से पहले कितने बीस आ रहे हैं, दैट इज बीटी। तो अगर बीस बीएस और बीटी बराबर होंगे तभी तो एस और टी का फर्स्ट occurrence ऑफ ए सेम होगा, राइट? तो दैट इज अप टू यू हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। तो अगर इसमें कंटिन्यूअसली बी आता रहा तो बी एस इंक्रीमेंट होता रहेगा, नहीं तो हम ब्रेक कर जाएंगे इस फॉर लूप से, राइट? तो सिमिलरली यू कैन से दैट इफ बी एस इज नॉट इक्वल टू बी टी, मतलब कि दोनों का फर्स्ट occurrence ऑफ ए सेम नहीं है, तो यू कैन सिंपली प्रिंट अ नो, else you have to print a yes at last. Okay, so that is all for this question. Now let's see the next question. The next question is buying order, the easy version of the problem. So this question says that there's a shop with n distinct items numbered from 1 to n, and there's a boolean array b of length n. You want to buy all the n items once each in some order. So you will buy all the items exactly once, but the order would be different. Like there's a permutation of order. You can buy any item in any order, right? Now, there are two conditions that if b of pi is 1 and there exists some j less than I such that pj is greater than pi, then you get two copies of that item. Else, you are going to get one copy of that item. And if b of pi is 0, it's the opposite, that if j less than I and pj less than pi, then you get two copies, else you get one copy, right? Find the maximum total number of items you can get in the end, right? Now, for this problem, let me explain it. So the question is saying that there are n items in a shop, right? They are numbered from 1 to n. Okay. Then there is a permutation. What is P of I permutation? Permutation is कि तुम किस order में वो item buy कर रहे हो. Suppose this is the first item, second item, and so on till nth item. ठीक है. Now अगर तुम first item को थर्ड गो में बाय करना चाहते हो तो दिस थ्री सिंबलाइजेस कि तुम फर्स्ट आइटम को तीसरे टर्न पे बाय करोगे. ओके, इफ आई assume that purchasing an item is a turn, right? तो सपोज सेकेंड आइटम को तुम फर्स्ट गो में बाय कर लेते हो एंड सो ऑन, एक परम्यूटेशन होगी टिल एन. सपोज एन यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ एन माइनस वन होगा, इस तरीके से एन लेंथ की एक परम्यूटेशन होगी. व्हाट डज दिस परम्यूटेशन मीन्स? दिस परम्यूटेशन मीन्स कि जो ith आइटम है वो किस टर्न पे बाय किया जाएगा, मतलब किस ऑर्डर पे बाय किया जाएगा, राइट? अगर हमारे पास तीन आइटम्स होते एंड द परम्यूटेशन वाज 2 1 3, देन दिस मीन्स दैट कि फर्स्ट आइटम सेकेंड टाइम बाय किया जाएगा. मतलब जब तुम दूसरा आइटम जो दूसरा आइटम जो बाय कर रहे होगे दैट वुड बी द आइटम मार्क्ड एज फर्स्ट. इस तरीके से समझो, राइट? मतलब तुम शॉप में आए, सबसे पहले तुम, अगर ये इंडेक्सिंग है 1 2 3, अगर तुम शॉप में आए तो तुम सबसे पहले सेकेंड आइटम बाय करोगे, देन फर्स्ट आइटम बाय करोगे एंड देन थर्ड आइटम बाय करोगे. सो दिस इज द ऑर्डर बेसिकली, राइट? Permutation is the order in which you are going to buy those items. Now, there is another Boolean array associated here. Okay, this is bi. तो हर आइटम के साथ एक Boolean वैल्यू एसोसिएटेड होगी. सपोज 1 0 एंड सो ऑन. सपोज लास्ट पे 0 था, ठीक है? तो एक Boolean array भी होगी. नाउ इट इज सेइंग दैट कि अगर इफ बी ऑफ पी आई है ना, मतलब अगर तुम इस परम्यूटेशन को आइटरेट करो तो ये पी आई है तुम्हारा, राइट? दिस इज योर पी आई. इफ बी ऑफ पी आई, बी ऑफ पी आई मीन्स बी ऑफ 3, right? Because I is 1 and pi is 3. So b of pi is 3, right? For I equals to 1, pi is 3. So what is b of pi? That is b of 3, which could be suppose 1, right? This could be 1. So if b of pi is 1, right? And there is some j less than I such that p of j is greater than p of I, then you get two copies of this item, right? Then you are going to get two copies of this item. Otherwise, you are going to get only one copy. This simply means that for j less than I, since we are standing on the first index, there is no valid j which is less than I. So it does not hold for this index. But there can be a case, मान लेते हैं कि ये
जो ये फर्स्ट इंडेक्स ना हो कि कोई ith इंडेक्स होता, ठीक है? इसको जनरलाइज कर लेता है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स ना हो कि कोई ith इंडेक्स होता, तो d ऑफ 3 पे 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इ इसके लेफ्ट में, राइट? इस ith इंडेक्स के लेफ्ट में, बिकॉज़ j लेस देन I, अगर कोई परम्यूटेशन मैट्रिक्स में अगर कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है व्हिच इज़ pj ग्रेटर देन pi, राइट? तो तुम क्या कह सकते हो? तो तुम ये कह सकते हो कि जो करंट ith आइटम है तुम्हारा, ith आइटम है, राइट? फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट 2 कॉपीज ऑफ दैट आइटम, एल्स यू आर गोइंग टू गेट 1 कॉपी। सिमिलरली अगर तुम्हारा d ऑफ pi 0 होता, राइट? तो इसमें उल्टा है, लाइक देयर शुड एग्जिस्ट अ j लेस देन I एंड pj लेस देन pi। अगर ये केस है तो तुमको 2 कॉपी मिलेंगी फॉर द ith आइटम, एल्स यू विल गेट ओनली 1 कॉपी, राइट? इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लो 4 आइटम्स थे, ठीक है? और दे आर नंबर्ड 1 2 3 4 एंड उसके लिए परम्यूटेशन हम बना लेते हैं। परम्यूटेशन बना लेते हैं हम 3 1 4 2, ठीक है? एंड b ऑफ i हमको गिवन होगा सपोज 1 0 0 1, ओके? नाउ इसको इस तरीके से समझो कि हम i इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, ठीक है? दिस इज माय i, दिस इज माय pi एंड दिस इज माय bi, राइट? i इक्वल्स टू 1 पे pi क्या है? 3। तो b ऑफ pi क्या होगा? b ऑफ pi थर्ड इंडेक्स पे होगा, राइट? दैट इज 0। सो माय b ऑफ pi इज 0। तो 0 के लिए क्या कंडीशन थी? If there exists a j less than I such that pj is less than pi. Because there is no j which is less than I, then you can't do anything here. You are going to get only one copy of the first item. One copy of first item. Right? Now तुम सेकेंड आइटम पे आओ। सेकेंड आइटम के लिए क्या है? पी आई, पी आई 1 है। बी ऑफ पी आई क्या होगा? बी ऑफ पी आई 1 है यहाँ पे, ठीक है? अब तुम बी ऑफ पी आई 1 है तो क्या करोगे? You will search for j less than I if there exists a j less than I such that pj is greater than pi, then you will get 2 copies। तो क्या कोई इस इंडेक्स के लेफ्ट में, इस इंडेक्स के लेफ्ट में क्या कोई ऐसा p वैल्यू है जो कि इस वैल्यू से बड़ा हो, राइट? 1 से बड़ा 3 है। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 2 कॉपीज ऑफ सेकंड आइटम, ठीक है? ये समझ आया ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज p of pi is 1 and this is the first index which is less than the second index, j is less than I and also pj is greater than pi। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 is greater than 1, ठीक है? इसलिए यहाँ पे 2 कॉपीज मिली सेकंड आइटम की। नाउ यू मूव टू द थर्ड आइटम। थर्ड आइटम के लिए पी आई 4 है, तो बी ऑफ पी आई पे जाओगे दैट इज 1 अगेन। तो यू विल सर्च फॉर जे लेस देन आई। क्या कोई ऐसा लेफ्ट में कोई ऐसा आइटम एग्जिस्ट करता है जिसका पीजे ग्रेटर देन पी आई हो? ऐसा आइटम नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यू विल गेट ओनली 1 कॉपी है थर्ड आइटम, राइट? एंड फॉर द फोर्थ आइटम इट इज 2 है एंड 2 पे 0 है। 2 पे अगर 0 है तो जे लेस देन आई के लिए तुमको पीजे लेस देन पी आई चाहिए। क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है? ऐसा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है, राइट? दिस इज जे लेस देन आई एंड पीजे इज ऑल्सो लेस देन पी आई। इसलिए यू विल गेट 2 कॉपीज है फॉर द फोर्थ आइटम। 2 copies for the fourth item, right? This means that you are going to get 2 plus 2 plus 1 plus 1, 6 copies total. But you have to maximize this thing. You have to maximize the number of copies you can get, right? Like suppose you are getting 6 copies here. It might be अगर तुम PI कुछ से कुछ और choose करते हैं, because you are the one who is going to choose this PI, the order in which you're going to buy the permutation, right? तुमको जो दिया है वो बस BI दिया है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि कोई और परम्यूटेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा कॉपीज़ आती या कम कॉपीज़ आती, तो यू हैव टू बेसिकली गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज़। अगर हम इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो तुम एक बात समझो
मान लेते हैं कि पी आई कुछ भी है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर माई पी आई इज, राइट। अगर मैं पी आई बनाना चाहता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है, इसके बाद के जो इंडाइसेस हैं उनके लिए, है ना, मान लीजिए थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड सो ऑन टिल nth इंडेक्स, तो कोई भी ith इंडेक्स जो कि इस रेंज में है, और एनी ith इंडेक्स, अगर बी ऑफ पी आई पे क्या होगा, है ना, बी ऑफ पी आई पे या तो जीरो होगा या तो बी ऑफ पी आई पे वन होगा। अगर जीरो हुआ तो मुझे क्या चाहिए, ये ith इंडेक्स 3 से n तक है, ठीक है, इसके लेफ्ट में, यानी कि वन पे या तो टू पे, ठीक है, मुझे चाहिए कि इससे छोटा नंबर एग्जिस्ट करता हो, है ना। अगर जीरो है, इससे छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर शुड एग्जिस्ट, अब मुझे दो कॉपीज मिलेंगी, एंड दिस सेज दैट ग्रेटर नंबर शुड एग्जिस्ट। अब तुम एक बात समझो कि परम्यूटेशन में सारे नंबर्स यूनिक होते हैं और डिस्टिंक्ट होता है, राइट, मतलब डिस्टिंक्ट होता है एंड एग्जैक्टली वन अकर करता है। तो अब सोचो 1 to n में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर वन है, और सबसे बड़ा नंबर n है। वन और n के लिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मैं ऐसा करूं कि शुरू के दो इंडाइसेस पे वन और n रख दूं, ठीक है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब या तो वन और n रख दो, n और वन रख दो, मतलब कुछ इस तरीके से रख दो, बाकी के जो बचे हुए इंडेक्सेस हैं, है ना, 3 से n तक, बेसिकली जो n-2 इंडाइसेस बचेंगे, उनके लिए तो तुम हमेशा श्योर हो कि तुमको दो कॉपीज मिलने वाली है, राइट। क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे अगर थर्ड इंडेक्स पे जो पी आई है उसके करस्पॉन्डिंग जो बी पी आई होगा, अगर वहां पे जीरो हुआ तो इसके लेफ्ट में वन, इससे छोटा नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। और अगर वहां पे वन हुआ तो ग्रेटेस्ट नंबर एन वो भी इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है ना। तो हमेशा ही थर्ड इंडेक्स के लिए दो कॉपी मिलने वाली है, सिमिलरली फोर्थ इंडेक्स के लिए भी दो कॉपी मिलेगी, एंड सो ऑन टिल nth इंडेक्स। तो तुम सेफली कह सकते हो कि इतनी कॉपीज तो तुमको एटलीस्ट मिलेंगी ही मिलेंगी, n-2 into 2, राइट। नाउ बात यह है कि इन दोनों का केस बता कि ये दोनों आपस में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब वन और एन के लिए, मतलब जो फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम है, क्या इन दोनों की एक एक कॉपी मिलेगी या दो दो कॉपी मिलेगी। उसके लिए क्या है कि फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम पे वन और एन रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो तुम वन और एन रखोगे या फिर तुम एन और वन रखोगे। मान लेते हैं कि हम केस वन डिस्कस करते हैं, वन और एन रखा, तो अगर तुमने वन और एन रखा, राइट, तो वन और एन के लिए जो इनके जो ये तो पी आई है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बी पी आई होगा, इसकी इसके क्या क्या केसेस पॉसिबल है। तो हम चारों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो या तो वो केसेस जीरो जीरो होगा, या जीरो वन होगा, वन जीरो होगा, या फिर वन वन होगा, राइट। यही केसेस पॉसिबल है। तो अगर मेरा मेरा बी आई में अगर पहले और आखिरी इंडेक्स पे, लाइक बी पी आई मतलब बी का पहला इंडेक्स, और बी पी आई एन मतलब बी का आखिरी इंडेक्स, ठीक है। इफ फर्स्ट इंडेक्स इन array is zero, this boolean array, right, and last index in array is also zero, in this case क्या होगा, अगर तुम फर्स्ट, मतलब अगर तुम शुरू के दो इंडाइसेस पे परमुटेशन में वन और एन रखो, एन और वन रखो, अगर तुम वन एन रखते हो, ठीक है, तो दीज बोथ आर जीरो, मतलब तुमको देखो हमेशा पहले इंडेक्स के लिए तो एक ही कॉपी मिलने वाली है, देर इज नो वे यू कैन गेट टू कॉपीज फॉर द फर्स्ट इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे तुम अगर वन रखोगे तो बी ऑफ पी आई क्या होगा, जीरो होगा, तो इसके लेफ्ट में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इससे छोटा हो। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये भी जीरो है। हम्म। हाँ, राइट, सो आई वाज सेइंग कि अगर तुम वन और एन रखते हो तो बी ऑफ पी आई मतलब बी ऑफ एन वो भी जीरो है यहाँ पर। तो क्या इसके लेफ्ट में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि इससे छोटा हो, यस एग्जिस्ट करता है वन। इस केस में तुमको
टोटल 3 कॉपीज मिलेंगी, राइट? मतलब एक कॉपी तो फर्स्ट आइटम के लिए एंड 2 कॉपी इसके लिए, सेकंड आइटम के लिए, राइट? बट अगर तुम n और 1 रखे होते तो तुमको फर्स्ट आइटम के लिए तो नहीं मिलती, बिकॉज अगर इसका बी ऑफ पी आई 0 है, के लेफ्ट में कोई भी से छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड तुमको इसके लिए तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि ये खुद ही फर्स्ट आइटम है। फर्स्ट आइटम के लिए कभी भी तुमको 2 कॉपी नहीं मिलने वाली है, कि लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, राइट? इस केस में 2 कॉपीज मिलेंगी। इस केस में बेनिफिशियल क्या है? इस केस में बेनिफिशियल ये है कि तुम 1 और n रखो, ठीक है? और इसमें तुमको 3 कॉपीज मिलने वाली है इस तरीके से रखने से। अगर तुम 0 और 1 रखो, ठीक है, मतलब कि अ, कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम 0 और n रखे हो, मतलब 0 और 1 है, अगर तुम 1 n रखो, दिस सिंपली मीन्स दैट कि बी ऑफ 1 0 है एंड बी ऑफ n 1 है। अगर ये सिनेरियो है तो तुम बी ऑफ n की अगर बात करो, क्योंकि बी ऑफ n 1 है, तुमको अपने लेफ्ट में n से बड़ा नंबर चाहिए, जो कि संभव नहीं है। और बी ऑफ 1 की बात करो तो बी ऑफ 1 0 है, तो तुमको अपने लेफ्ट में 1 से छोटा नंबर चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इस केस में 2 कॉपी मिलेगी। अगर तुम n और 1 रखते हो, n के केस में तो तुमको एक ही कॉपी मिलती, क्योंकि n के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट 1 के केस में, क्योंकि 1 पे 0 है ना, तो क्या 1 के लेफ्ट में इससे छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इस केस में तुम कैसे भी रख लो, तुमको हमेशा 2 ही कॉपीज मिलने वाली है, राइट? 0 और 1 में हमेशा 2 कॉपीज मिलेंगी। तो अब 1 और 0 की बात कर लेते हैं। अगर 1 और 0 है, तो 1 और n तुम रखोगे तो क्या मिलेगा? बी ऑफ 1 तुम्हारा 1 है, तुमको लेफ्ट में इससे बड़ा नंबर चाहिए, जो कि संभव नहीं है। और बी ऑफ n तुम्हारा 0 है, तो तुमको लेफ्ट में से छोटा नंबर चाहिए, जो कि संभव है। तो 2 कॉपीज के लिए, एक कॉपी 1 के लिए, तो 3 कॉपीज मिल रही है यहाँ पे। तो देयर इज अ वे जिससे तुम 3 कॉपी बना सकते हो, 3 कॉपीज। और 1 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि हम तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना, इसलिए मैं n और 1 का कन्फिग्रेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना? बट अगर तुम n और 1 का कन्फिग्रेशन देखो ना, अगर यहाँ पे n और 1 रखो, तो बी ऑफ 1 तुम्हारा 1 है, तो इसके लिए तो इसके लेफ्ट में से बड़ा नंबर एक्सेस करना चाहिए, ठीक है? जो जो कि हो रहा है, मतलब n एक्सेस करता है ना इसके लेफ्ट में। इस केस में भी 3 कॉपीज मिल रही है, तो आइदर यू कीप 1n और n1। इन दोनों केसेस में यहाँ 3 कॉपीज मिलने वाली है। बट अगर 1 और 1 की बात करते हैं, 1 और 1 की बात करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम 1 और n रखें, तो बी ऑफ 1 1 है, तो इसके लेफ्ट में इससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और बी ऑफ n भी 1 है, इसके लेफ्ट में इससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ 2 कॉपी मिल रही है। अगर तुम n 1 रखते, इसके लेफ्ट में से बड़ा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, इसके लेफ्ट में से बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 3 कॉपीज मिलेंगी, राइट? तो यहाँ पे भी 3 कॉपीज मिलना संभव है। तो अब तुम ये देखो कि सिर्फ एक ऐसा केस है जिस केस में 2 कॉपीज मिल रही है। और वो केस क्या है? वो केस है कि जब बी ऑफ 1 0 हो और बी ऑफ n 1 हो। सिर्फ इस केस में 2 कॉपीज मिलेंगी, वरना हमेशा तुम 3 कॉपी निकाल सकते हो। तो दिस सिंपली मीन्स दैट इस केस में पहले हमारे पास टोटल कॉपीज कितनी आई थी? टोटल कॉपीज आई थी n माइनस टू इंटू टू, राइट, फॉर ऑल द अदर इंडाइसेस। सो इस केस में n माइनस टू इंटू टू प्लस 2 कॉपीज, है ना? ये हमारा आंसर होगा। दिस वुड बी 2n minus 4 plus 2. This would be 2n minus 2, right? Else, else all other cases में क्या आंसर मिलेगा? n minus 2 into 2 तो हमको बाकी इंडाइसेस से कॉपी मिलेंगी प्लस 3, राइट? प्लस 3 कॉपी शुरू के 2 इंडाइसेस से मिलेंगी। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया? 2n minus 4 plus 3, मतलब कि 2n minus 1, राइट? यही केस है। तो लाइक आवर प्रॉब्लम लाइक कंक्लूड्स टू दिस थिंग कि अगर b ऑफ 1 0 p ऑफ n 1 है, तो आंसर 2n minus 2 होगा, वरना हमेशा ही आंसर 2n minus 1 होगा, राइट? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉपीज यू कैन गेट। That was all for this problem. Now let's see the implementation of this problem, which is quite simple. This is very simple. Like once you figure out this thing,
You just have to take the length of the array and the array itself. This is the Boolean array, right? So if v of 0, like not of v of 0, is true, this means that v of 0 is 1 and sorry, v of 0 is 0 and v of n minus 1, the लास्ट इंडेक्स पे 1 है और पहले इंडेक्स पे 0 है. दिस इज द केस ऑफ 0 1, राइट? 0 1 वाला केस है. तो तुम कह सकते हो कि आंसर 2n-2 होगा. नहीं तो एल्स केस में हमेशा ही आंसर 2n-1 होगा, राइट? लाइक वी डिस्कस्ड हियर, b1 is 0 and bn is 1. तो आंसर 2n-2 है, वरना आंसर 2n-1 है हमेशा, राइट? I hope this explanation was quite clear. So that was all for this problem. Let's see our next question. So unfortunately, this is our last question which we are going to take. I was not able to solve this sixth question in the contest, and like I didn't solve it also, but it was like quite intuitive actually. Like I figured it out almost. But anyways, let's see this question. This question says that palindrome. I hope you know what is a palindrome, right? Okay. So this is the definition of palindrome. So the question says that chef has with him a string s of length n containing only lowercase alphabets, and he wants to turn s into a palindrome. To do that, he can perform the following operation. Choose a substring s and it's not a palindrome and does not equal to the full string, and delete that substring from s, and the remaining characters don't change their order and they are concatenated. Is it possible, chef, to turn s into a palindrome using several operations? Okay. And if it is possible, then you have to tell the minimum number of operations necessary, right? Okay. So I hope the question is clear. The question is saying that you're given a string s and you have to basically tell that you can turn s into a palindrome or not. This is the question. Okay. So for turning s into a palindrome, you are given an operation. In that operation, you can select a substring of s. Okay. That substring should not be palindrome. Should not be palindrome. Okay. Um, let's see it again. Chef chooses a substring that is not a palindrome and does not equal to the full string. Okay. And its length should not be equal to the full string. मीन्स कि तुम पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठा के तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते हो. सो यू वुड बी लेफ्ट विद एम्प्टी स्ट्रिंग. ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो तुमको एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो छोड़ना ही छोड़ना है, बिकॉज वन कैरेक्टर itself is a palindrome, right? So these are the two cases, and you can delete that substring and concatenate the rest other part, right? तो अब इसमें ये देखो कि अगर s पहले से palindrome है, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 हो जाएंगे. और अगर s palindrome नहीं है, देखने वाली चीज है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है? ओके. तो इसमें ऐसे सोचते हैं कि इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सिनेरियो क्या होगा, है ना? मान लेते हैं कि बस कुछ इस तरीके से है कि ए बी ए सी है, राइट? तुमको पैलिंड्रोम के लिए आगे से और पीछे से स्ट्रिंग सेम चाहिए होती है. तो अच्छा, तुम ऐसा हमेशा कर सकते हो ना कि ऑपरेशन मिनिमाइज भी करना है ना, तो तुम देखो एक चीज तो हमेशा कर सकते हो कि मतलब एक स्ट्रिंग छोड़ के ये पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लो और इसको डिलीट कर दो, राइट? So you will be left with only one character A, because as I told you that one character is always a palindrome. Always palindrome. हाँ. अगर तुमको अपने ऑपरेशंस मिनिमाइज करने हैं तो तुमको यही करना होगा, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिर्फ एक लगेगा.
सिर्फ एक ऑपरेशन में तुम क्या करो, पहला कैरेक्टर छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग डिलीट कर दो, उसको सब स्ट्रिंग मान के, है ना। इस केस में एक ऑपरेशन लगेगा और तुम एक ही कैरेक्टर के साथ बचोगे, ठीक है। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि तुम इसका उल्टा करो, मतलब कि ए बी ए सी में तुम ए बी ए को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो और सी के साथ सी को छोड़ दो, ठीक है। ऐसे करोगे तो भी एक ही ऑपरेशन लगने वाला है और तुम सी के साथ बचोगे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, तुम उस सब स्ट्रिंग को सेलेक्ट नहीं कर सकते जो कि पैलिंड्रोम हो, क्योंकि ए बी एक खुद में एक पैलिंड्रोम है, राइट। तो यू कांट सेलेक्ट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। बट तुम ये वाला ऑपरेशन कर सकते हो। तो एक चीज तो ये निकल के आती है कि अगर तुम सब स्ट्रिंग लेते हो फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की, तो फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टिल एन माइनस वन इंडेक्स, अगर ये वाली सब स्ट्रिंग, अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है ना, तो हमारा काम आसान हो गया। तो हम सिर्फ एक ऑपरेशन में कर लेंगे काम, इस पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर दो सेलेक्ट करके, बचोगे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के साथ, एस ऑफ जीरो के साथ, राइट। और 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 अगर तुम्हारे पास जीरो इंडेक्स से लेके एन माइनस टू एथ इंडेक्स तक, ठीक है, ये वाली सब स्ट्रिंग भी अगर पैलिंड्रोम नहीं है, तो भी तुम्हारा काम आसान हो गया। तुम एक ऑपरेशन में ये पूरी स्ट्रिंग डिलीट कर दो एंड यू विल बी लेफ्ट विद एस ऑफ एन माइनस वन, तो भी वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। केस आता है कि अगर ये दोनों पैलिंड्रोम हुए, है ना, अगर ये दोनों पैलिंड्रोम हुए, अगर तुम इसको ध्यान से सोचोगे ना, तो ये दोनों एक साथ पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकते। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये स्ट्रिंग ए बी ए सी होती, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, ये दोनों पैलिंड्रोम हो जाए, है ना। ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम ये सोचने की कोशिश करो कि, मतलब मैं उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे ये पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर ये पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो आंसर जीरो है, ठीक है, वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर निकाल के बची हुई स्ट्रिंग और इसका लास्ट कैरेक्टर निकाल के बची हुई स्ट्रिंग, क्या ये दोनों पैलिंड्रोम होंगे? ये दोनों एक साथ पैलिंड्रोम नहीं हो सकते हैं, बिकॉज तुमको ये चाहिए, जैसे मान लो ए बी ए तो पैलिंड्रोम बन रहा है, अब बी ए सी को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको यहाँ बी ए बी रखना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में क्या करोगे, ए बी, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। ए बी के केस में क्या करोगे, अगर तुम्हें इसे पैलिंड्रोम बनाना है, हाँ तो भी तो तुम एक ऑपरेशन में कर सकते हो, राइट। अगर तुम, मतलब ये बेसिकली ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे तुम एक ऑपरेशन में कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज तुम इस बी को डिलीट कर दो तो यू विल बी लेफ्ट विद ए बी ए। हाँ, ओके ओके ओके, सो सॉरी आई वाज सेइंग रॉन्ग। दे दीज कैन बी इक्वल, बट इफ दे आर इक्वल, है ना, अगर ये दोनों, सॉरी, मतलब दे बोथ कैन बी पैलिंड्रोम्स, तो अगर ये दोनों पैलिंड्रोम हो भी जा रहे हैं ना, तो भी हमारा केस, तो भी हमारा आंसर वन ही आएगा। बिकॉज तुम क्या कर सकते हो कि या तो इसका पहला कैरेक्टर या इसका लास्ट कैरेक्टर ये डिलीट कर दो, है ना। मतलब तो बेसिकली हमारे पास ये केस बचा कि व्हेन एस इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, आंसर हमेशा ही वन आएगा, है ना। अ, जबकि जब तुम्हारा, अगर तुम्हारा सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग वन से लेके एन माइनस वन तक ये पैलिंड्रोम ना हो, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि सबस्ट्रिंग जीरो से लेके एन माइनस टू तक ये पैलिंड्रोम ना हो। ये केस तो सॉर्टेड है ना। ये दोनों केसेस सॉर्टेड है कि इस केस में इन दोनों केसेस में आंसर वन मिल रहा है। बट
क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके n-1 तक और 0 से लेके n-2 तक दोनों स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा ए बी ए बी, तो इस केस में ए बी एक पैलिंड्रोम है एंड बी भी एक पैलिंड्रोम है एंड ए बी खुद में एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो पहला कैरेक्टर डिलीट कर लो या लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर लो। अगर तुम पहला कैरेक्टर डिलीट करोगे तो भी तुम्हारे पास एक पैलिंड्रोम बचेगा, और अगर तुम लास्ट कैरेक्टर डिलीट करोगे तो भी तुम्हारे पास एक पैलिंड्रोम बचेगा, राइट? इस केस में भी आंसर 1 आएगा। ओके, सो आई थिंक यू कैन समराइज दिस थिंग। लेट मी सी कि मैंने कॉन्टेस्ट में कैसे किया था, बिकॉज काफी टाइम हो गया। लेट मी सी इट, लेट मी सी माई सबमिशन। द कंटेस्ट, आई हैव क्रिएटेड अ बूलियन फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट डज दिस फंक्शन इज डूइंग। यहाँ पे मैंने फ्लैग 1 ले लिया है। आई हैव टेकन टू इंडाइसेस आई एंड जे, तो बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच से मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर कोई ऐसा इंडेक्स मिल गया मुझे वहां जहाँ पे एस आई एस जे बराबर नहीं है, तो आई कैन सिंपली मेक माई फ्लैग 0 एंड ब्रेक। ठीक है, तो मैं फ्लैग 0 रिटर्न कर दूंगा। बेसिकली 0 मतलब होगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, वरना मैं हमेशा ही आई प्लस प्लस और जी माइनस माइनस करता रहूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। दिस इज इजी। नाउ आई एम टेकन द इनपुट्स है, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। आई एम चेकिंग दैट क्या पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो आई एम गिविंग द पैरामीटर्स here string s and length of the string। अगर ये पैलिंड्रोम हुई तो आंसर 0 होगा एंड वी विल रिटर्न। अगर ये पैलिंड्रोम नहीं हुआ तो उस केस में क्या कर रहा है कि इफ लेंथ इज ऑड देन यू कैन ऑलवेज प्रिंट अ 1। ओके, इज इट सो? if n is odd then you can always print a 1। uh okay, let me check। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि मान लेते हैं कि हम एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं ए बी सी। ओके, तो अगर ये लेंथ ऑड है तो आंसर हमेशा 1 होगा क्या? देखो, अगर n इक्वल टू 1 है तो आंसर हमेशा 0 ही है, राइट? बिकॉज वो तो एक पैलिंड्रोम है ही। बट n इक्वल टू 1 ऑड है तो जो बची हुई स्ट्रिंग होगी वो इवन लेंथ की होगी, राइट? अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होती है, हम्म, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होती है, एक सेकेंड, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, then you have to print a 1। आई थिंक -1 किस केस में प्रिंट हो रहा था? लेट मी टेक एन एग्जांपल जहाँ पे -1 कहाँ पे प्रिंट हो सकता है। लाइक दिस वाज द प्रॉब्लम, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, so this is a case my, so for n equals to 2 इस केस में -1 प्रिंट हो रहा है। why? my के केस में -1 प्रिंट हो रहा है because the length is even here and इसको हम डिलीट नहीं कर सकते और इसको भी हम डिलीट नहीं कर सकते, राइट? राइट। तो एक चीज तो हम हमेशा कह सकते हैं कि n अगर ऑड हुआ तो आंसर हमेशा ही 1 होगा। क्यों? बिकॉज सपोज कि माई के बाद अगर यहाँ पे m/m होता तो ऑब्वियसली तुम इसको सेलेक्ट कर सकते थे या इसको सेलेक्ट कर सकते थे, तुम हमेशा एक कैरेक्टर के साथ बचते। मतलब कि
फर्स्ट को हटा के या लास्ट को हटा के जो इवन लेंथ की जो स्ट्रिंग बचेगी इन ऑड वाला केस, ठीक है, इफ n इज ऑड, है ना, तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो यहाँ पे a है, ठीक है, एंड इसके बाद जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग बचेगी, सपोज वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होती, my, ठीक है, मतलब इसको पैलिंड्रोम बना लेता है, my कर लेता है, ठीक है, my अगर कर लोगे तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे तो आंसर हमेशा 1 निकलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट राइट, अब मुझे याद आया व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द कंटेस्ट। ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पे n इक्वल टू ऑड के लिए ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाती है, राइट, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम हो जाती हैं, जो जो कि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो दिस इज द केस फॉर n इक्वल टू ऑड। ये मतलब हमेशा ही तब आंसर 1 आएगा जबकि बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि n इक्वल टू ऑड के लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्ट्रिंग एक साथ पैलिंड्रोम हो जाएं। दोनों स्ट्रिंग का मतलब है जो सब स्ट्रिंग हम कंसिडर कर रहे थे ना, क्योंकि 0 से लेके n-2 तक, n1 से लेके n-1 तक, तो ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ पैलिंड्रोम नहीं हो सकती हैं। व्हाई? क्योंकि ये दोनों इवन लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर हम पहला और आखिरी कैरेक्टर छोड़ दें तो ये दोनों स्ट्रिंग इवन लेंथ स्ट्रिंग बनती है। तो अब तुम ये देखो कि अगर एक इवन लेंथ स्ट्रिंग को मैं पैलिंड्रोम बना लेता हूँ, जैसे मान लो ए बी बी ए है, ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आएगा, वो भी एक पैलिंड्रोम बन जाए। बट क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, राइट। अगर मुझे इसे पैलिंड्रोम बनाना होता तो मुझे क्या रखना पड़ता, आई वांटेड कि अ, यहाँ पे तुम कुछ भी रखो पैलिंड्रोम नहीं बनने वाला है, बट अगर इसे पैलिंड्रोम बनाना होता तो तुम क्या करते, तो तुम माइट बी ये बी और ये बी होता, उस केस में क्या होगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तो हमेशा ही ऐसा होगा कि या तो ये कोई एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जो कि पैलिंड्रोम नहीं बन रही होगी। दो इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स जो है वो पैलिंड्रोम नहीं बन पाएंगी। बट ऐसा हो सकता है कि जो इवन, अगर पूरी स्ट्रिंग n इक्वल टू इवन था तो जो बची हुई स्ट्रिंग होगी 0 से लेके n-2 ना, और 1 से लेके n-1, ये दोनों स्ट्रिंग्स ऑड लेंथ की होंगी, राइट, सब स्ट्रिंग्स। तो ऐसा हो सकता है कि अ, दोनों स्ट्रिंग्स बेसिकली जो है अ, वो पैलिंड्रोम हो जाए। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन आ जाता है ना, मतलब कि जैसे मान लो तुमने बी के बी बनाया, तुमको चाहिए कि तुमको ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बनानी है, तो तुम सिंपली यहाँ पे ए रख दो, तो वो पैलिंड्रोम बन जाएगा, है ना, बिकॉज तुम हमेशा ही ऐसा केस सोच सकते हो कि मतलब इन दोनों स्ट्रिंग्स में बेसिकली डिफर क्या कर रहा है, डिफर ये और ये कर रहे हैं ना, बीच में तो तुम कॉमन है ना, ये पार्ट तुम कॉमन रखो और तुम पहला और आखिरी कैरेक्टर चेंज कर लो किसके हिसाब से, इस हिसाब से चेंज कर लो कि यहाँ पे तुम वो कैरेक्टर रख लो जो इसके लास्ट में रखा है कॉमन पार्ट के, और यहाँ पे तुम वो कैरेक्टर रख लो जो शुरुआत के कॉमन पार्ट स्टार्ट रखा है, गिवन दैट कि ये कॉमन पार्ट बेसिकली पैलिंड्रोम बनाता हो दोनों सब स्ट्रिंग्स को, है ना। तो एक यहाँ पे केस संभव है कि इवन के लिए ऐसा हो जाए कि अ, दोनों स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम हो जाए, है ना। तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है कि मान लो बी ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इवन लेंथ है, एंड ए इज अ पैलिंड्रोम एंड बी इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, राइट। तो क्योंकि बी ए के केस में दोनों स्ट्रिंग्स अब पैलिंड्रोम बन जा रही हैं, देखो ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि तुम कोई ऐसी सब स्ट्रिंग सेलेक्ट कर पाओ, है ना, कि
तुम बची हुई स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बना दो। बस देखो, बी ए खुद में तो पैलिंड्रोम है नहीं, तो तुम ए बी ए सेलेक्ट नहीं कर सकते, बी ए भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ए बी ए खुद में एक पैलिंड्रोम है एंड बी ए बी भी खुद में एक पैलिंड्रोम है। तो हमारी वो वाली थ्योरी तो फेल कर गई कि हम पहले और आखिरी कैरेक्टर को छोड़ छोड़ के बाकी पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर पाए तो एक ऑपरेशन में काम हो जाए। क्या कोई और केस काम कर सकता है? मान लो बी ए में तुमने ए बी को सिलेक्ट किया, ये पैलिंड्रोम नहीं है, इसको तुम डिलीट कर दो, बट तुम बचोगे बी ए के साथ, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? और अगर तुम इस बी ए को डिलीट कर दो तो भी तुम बी ए के साथ बचोगे, राइट? इस केस में जबकि दोनों स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम हो जाती हैं, तो तुम किसी को डिलीट नहीं कर पा रहे हो, राइट? तुम हमेशा ये कह सकते हो कि n इक्वल टू ऑड में तो आंसर हमेशा 1 आएगा, बट n अगर इवन है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों सब स्ट्रिंग्स हैं, इसमें से अगर एक भी लाइक एक भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो तुम्हारा काम बन गया, केस में आंसर 1 आएगा। एल्स इस केस में -1 आएगा, बिकॉज तुम कभी उसको पैलिंड्रोम नहीं बना पाओगे, राइट? सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ओके। और अगर स्ट्रिंग पहले से पैलिंड्रोम गिवन है तो आंसर 0 आएगा। ओके। तो नाउ वी कैन सी द सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि दिस दिस पहले चेकिंग की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, फिर तुम क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग और लेंथ इनपुट लेने के बाद सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि क्या स्ट्रिंग पहले से पैलिंड्रोम है। अगर पहले से पैलिंड्रोम है तो 0 रिटर्न कर दो, राइट? प्रिंट करके रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर n एंड 1, दिस इज बेसिकली चेकिंग की स्ट्रिंग की लेंथ n ऑड है कि नहीं। ठीक है, दिस इज अ बिटवाइज ऑपरेशन। तो अगर ये ऑड है तो यू कैन सिंपली प्रिंट 1। एल्स इफ अगर ये ऑड नहीं है तो मतलब ये इवन हुआ। इवन के लिए तुमको क्या चेक करना पड़ेगा? इस पैलिंड्रोम एस डॉट सब सबस्ट्रिंग 1 से लेके n-1 तक की सबस्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी लेंथ n-1 है। तो बिकॉज दिस इज रिक्वायरिंग टू एट्रीब्यूट्स, राइट? स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होगी मेरी? वो सबस्ट्रिंग जो कि इंडेक्स 1 से लेके n-1 तक है और उसकी लेंथ n-1 है। अगर इसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि 0 से लेके n-1 तक की सब स्ट्रिंग हो, राइट? तो अगर इसके लिए भी ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर 1 होगा, वरना ही हमेशा मेरा आंसर -1 होगा, राइट? ओके। So that was all for this problem, I guess. I hope it was clear. Okay. So that is all for this contest discussion. So thank you everyone.